નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ ટોપિક કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે છું નરેશ સોની અને આજે આ અંતર્ગત આપણે વાત કરવી છે રામ મંદિર પર રાજકારણ શા માટે. દર્શક મિત્રો, રાજકારણ એટલા માટે કારણ કે જે પ્રકારે મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, લગભગ 500 વર્ષની પ્રતીક્ષા બાદ રામ મંદિરની જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે ચોક્કસથી એક લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહનો આનંદનો માહોલ આપણને જોવા મળી શકે. પરંતુ હજુ પણ ક્યાંક આપણને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આ વાતને લઈને વિરોધનો વંટોળ આપણને જોવા મળ્યો. એમના દ્વારા એવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું કે આ ભાજપ અને આરએસએસનો એજન્ડા છે અને તેના કારણે તેમને ઇન્વિટેશન મળવા છતાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી, અધીર રંજન ચૌધરીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું, પરંતુ તેમણે આમંત્રણનો અસ્વીકાર કર્યો છે. ત્યારે સાથે ધર્મને, આસ્થાને પણ લઈને આપણે જ્યારે વાત કરીશું તો આપણે જ્યારે ભારત હિન્દુ સંસ્કૃતિ આધારિત આપણો દેશ છે, હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આપણે 4 શંકરાચાર્યો આપણને જોવા મળતા હોય છે, તેમને આપણે પૂછતા હોઈએ છીએ. ત્યારે આ વાતને લઈને અલગ અલગ મતાંતર પણ આપણને જોવા મળ્યા છે. શંકરાચાર્યોને લઈને તેઓના નિવેદન થકી તેમનું કહેવું છે કે જે પ્રકારે શિખરબદ્ધ મંદિર જ્યાં સુધી નિર્માણ ના પામે ત્યાં સુધી તેઓ કોઈપણ પ્રકારના આ જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે એમાં ઉપસ્થિત નહીં રહે તેવું એમનું નિવેદન છે. આ અંગે શંકરાચાર્યોએ પણ વાત કરી છે. શંકરાચાર્યએ એવું પણ કહ્યું છે, અલગ અલગ એમના નિવેદન છે કે રામલલાની જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ છે તે શાસ્ત્રો અને નિયમોની વિરુદ્ધ છે. યોગ્ય રીતે પાલન ન કરાય તો મૂર્તિમાં ખરાબી જેવી બાબતો પણ થઈ શકે અને વૈદિક જે ગ્રંથોની અંદર નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે તે નિયમો પ્રમાણેનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આ મહોત્સવ નથી તેવું તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર વિષય અંતર્ગત આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે ભાજપના પ્રવક્તા છે શૈલેષ પરમાર, કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સાગર શાહ, મહંત છે ડૉક્ટર જ્યોતિનાથ આદિત્ય, સામાજિક આગેવાન ભરત વિષ્ણુસ્વામી કે જેઓ રામાનુજ શ્રીપંથથી સંકળાયેલા છે, અને અયોધ્યાથી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે અધ્યક્ષ છે રઘુવંશના સ્વામી દિલીપદાસજી ત્યાગી. આપ તમામ મહાનુભાવનું સ્વાગત છે. શૈલેષભાઈ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન મારો આપને કે જે પ્રકારેની પરિસ્થિતિ અત્યારે ભાજપ અને આરએસએસનો એજન્ડા બતાવવામાં આવ્યો છે, લોકોની આસ્થા સાથે સંકળાયેલું છે રામ મંદિર, ત્યારે શંકરાચાર્યો પણ આ વાતને લઈને વિરોધ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે કે યોગ્ય નિયમોનું પાલન કરવામાં આવી નથી રહ્યું અને જેના કારણે તેઓ ઉપસ્થિત નહીં રહે. જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે નરેન્દ્ર મોદી અને ત્યાંના યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ જ્યારે ઉપસ્થિત રહેવાના છે ત્યારે શું શંકરાચાર્ય તાળી વગાડશે તેવું પણ તેમનું એક નિવેદન છે. શૈલેષભાઈ, શું કહેશો? પ્રથમ તો રામ ભગવાનનું વર્ષો પછી અયોધ્યામાં સ્થાપિત થતું હોય તેનો આનંદ ગુજરાતને તો હોય જ. ગુજરાતના પ્રવર્તક વૈશ્વિક વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ભેગી તેમની ઉપસ્થિતિ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલો કામ વિશ્વમાં વસતા અવાજ બરાબર નથી આવી રહ્યો. શૈલેષભાઈ નો અવાજ નથી આવતો. શૈલેષભાઈ નો અવાજ નથી આવતો. હાલો હાલો હાલો. હાજી, હવે આવે છે. હાલો હાલો. ના, પણ ક્લિયર નથી. હજી ક્લિયર. હવે ક્લિયર થયો? હા, હવે હવે આવ્યો. હવે આવી ગયો. ડન. જ્યારે વિશ્વમાં વસતા હિન્દુઓની આસ્થાઓનું કેન્દ્ર રામ મંદિરનું ગઠન થતું હોય અને એનું લોકાર્પણ અને પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થતો હોય ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમની કાર્યકાળ દરમિયાન થતો હોય ત્યારે લાખો અને કરોડો હિન્દુઓની આસ્થા સાથે જોડાયેલું હોય અને કોઈ રાજનૈતિક પાર્ટી એમાં રોડા નાખવાના પ્રયત્ન કરે એ વ્યાજબી નથી. આમે કોંગ્રેસની જે નીતિ રીતિ અને વાણી જે છે એ એવી જ રહી છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય હિન્દુત્વની વાત આવે તો એ હિન્દુ વિરોધી વલણ અપનાવતી હોય છે. એ શા માટે આવું કરે છે એ તો મને ખબર નથી, પરંતુ જે પ્રકારની એમની વાત હોય છે કે ભાઈ આરએસએસ અને ભાજપ કરે છે, સરકાર કોઈ એક સંસ્થા કે કોઈ એક ધર્મની હોતી નથી. તમામ ધર્મ અને સદભાવના સાથેની સરકાર હોય છે અને સરકારને આ તો સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય છે, પણ આમાં મારે કહેવામાં કઈ વાંધો નથી કે કોંગ્રેસને દુખે છે પેટમાં અને કૂટે છે માથું. રામ મંદિરનું નિર્માણ હોય, કોંગ્રેસે તો ભૂતકાળમાં પણ કહ્યું છે કે રામ ભગવાન તો કાલ્પનિક હતા,
એ ત્યાં જે રામ સેતુ છે એ છે જ નહીં, એ પણ કાલ્પનિક વાતો છે. એટલે આ બધી કાલ્પનિક વાતો છે એવું કેનારા લોકો જે છે એ આ વિરોધ કરે. અને સ્વાભાવિક છે, આપણું રામ મંદિર છે, રામ ભગવાન એ આપણી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, એમાં ત્યારે એમની વૃત્તિનું પ્રતિષ્ઠાન થતું હોય તો આપણે જોડાવું જોઈએ. પરંતુ અને આમંત્રણ પણ આપ્યું છે, આમંત્રણ આપવા છતાં નથી આવ્યા, નથી આવવાના એવી ઘોષણા કરવી છે. ના આવવું હોય તો મનમાં રાખે, પણ ઘોષણા કરી એટલે એનો મતલબ એમ થાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક મીડિયામાં સ્થાન લેવા માટે અને મીડિયા મેનેજ કરવા માટે આ ખડકેજી, સોનિયાજી અને અધીર રંજન ચૌધરીજી આવું કરતા હોય. પરંતુ આનાથી કોંગ્રેસને વારંવાર નુકસાન થયું છે, થશે અને થતું આવ્યું છે, ને હજુ ઘણું નુકસાન થશે. ભગવાનની સાથે ચેડા કરશો એટલે નુકસાન થશે. ભગવાન માટે કોઈને આમંત્રણની જરૂર પણ ન હોય એવું અમે ચડે ચોક કહીએ છીએ. ભલે ગમે ત્યારે આવો, પણ રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પછી પણ આવો. પણ આ તો એ જ કોંગ્રેસ છે જેમણે જો 132 ફૂટનું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ મૂક્યું તો ત્યાં કોઈ કોંગ્રેસીઓ જતા નથી. શા માટે ભાઈ નથી જતા એ પણ આપણે પૂછવું જોઈએ. એટલે એમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રત્યે તકલીફ છે, એમને નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રત્યે તકલીફ છે, એમને રામ ભગવાન પ્રત્યે તકલીફ છે. એટલે બજરંગબલી માટે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હિન્દુ ધર્મ સાથે કોંગ્રેસને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ, તકલીફ કે વાંધો હોય એવું મને દેખાઈ રહ્યું છે. જે પ્રકારે તમે વાત કરી રહ્યા છો સર કે આપણે પોલિટિકલ એજન્ડા હેઠળ કોંગ્રેસ નથી આવી રહ્યું, આપણે હું ટેકનિકલ ટીમને વિનંતી કરીશ કે જ્યોતિર્મઠ બદ્રિકાના ઉત્તરાખંડમાં જે આવેલું છે તેના શંકરાચાર્ય છે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ, એમની બાઇટ ચલાવવામાં આવે. તેઓ શું કહે છે તેમની પ્રતિક્રિયા આપણે જાણીશું સમગ્ર વિષય અંતર્ગત. जिस प्रकार समग्र मामलो है, अयोध्या से अपने जुड़ चुके हैं रघुवंश के अध्यक्ष है अपने अयोध्या से स्वामी दिलीप दास जी त्यागी. दिलीप दास जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है अपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जो है चारों वो विरोध कर रहे हैं अपने इसका. जी, बाइट પછી ચલાવીશું, પહેલા એમનો જવાબ લઈશું. जी दिलीपदास जी, जी मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है दिलीपदास जी? લાગે છે કે ટેકનિકલ કારણોસર મારો અવાજ ત્યાં નથી પડ્યો. ટીમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ કનેક્ટ કરશે. ત્યાં સુધી આપણે મારો પ્રશ્ન જ્યોતિર્નાથજી આપને કે જે પ્રકારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વિષય અંતર્ગત શું કહેશો? જે પ્રકારે કોંગ્રેસ તો વિરોધ કરી રહી છે, સાથે સાથે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પણ આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. પહેલી વાત તો હું જયારે પૂછો છો ત્યારે હું કહું કે જગતગુરુ શંકરાચાર્યનો વિરોધ છે તે શાસ્ત્રોક્ત વિરોધ છે. એમને ચોખ્ખું જ કીધું છે કે જ્યાં ધર્મની હાનિ થતી એવી રીતની વાત થતી હશે ત્યારે અમે વિરોધ કરીશું. આજે શૈલેષભાઈ પરમ સ્નેહી એમ કહેતા હતા કે રામ અવિરોધી, તો રામ અવિરોધી તો સ્વામિનારાયણ વાળા બી છે, તમે કેમ બોલાયા એમને? ઉઠા ચડીને તમે તો આમંત્રણ આપ્યું. આજે રામ વિરોધી હોવા છતાં તમે બોલાવો છો, તે બી તો સનાતન ધર્મની હાનિ છે. સનાતન ધર્મની વાત કરતા હો તો સનાતનની પરંપરાઓ છે. અને હું કહું છું કે 498 વર્ષ પછી એક વિજય ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, મનાવવો જોઈએ, બધાએ મનાવવો જોઈએ. પણ જગતગુરુ શંકરાચાર્યને જ્યોતિનાથજી, આપની નેટની કનેક્ટિવિટીનો ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે, અવાજ કટ થઈ રહ્યો છે આપનો વધારે. એમને મંદિર થવું જોઈએ, ના થવું નથી કીધું. જ્યોતિનાથજી, આપનો કનેક્ટિવિટીનો ક્યાંક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. દિલીપદાસજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે? हाँ दिलीप दास जी, मेरा सवाल ये था आपको
कि जिस हिसाब से एक माहौल बना है राममय पूरा भारत अपने को दिखने को मिल रहा है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इस पे भी राजकारण चल रहा है और कांग्रेस पक्ष तो विरोध कर ही रही है, लेकिन अपने चारों जो शंकराचार्य है वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अगेंस्ट में। आप किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं दिलीप दास जी? सबसे पहले तो मैं इस पावन अवसर का सभी को, जितने भी पैनल पर बैठे सभी को जय सिया राम, सभी को बधाई है। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लगभग 500 वर्षों के बाद ये अवसर हम सभी लोगों को हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। और हमारे पूर्वजों का एक ही सपना था, भगवान रामलला की जन्मभूमि कब प्राप्त होगी और कब का ढांचा हटेगा और कब भव्य नव मंदिर का निर्माण होगा और रामलला अपने भवन में विराजेंगे। ऐसी प्रतीक्षा करते करते लगभग 492 साल निकल गए और आज ऐसा अवसर आया कि हम को नव भवन में विराजमान होने के अवसर हम प्राप्त हो रहा है। इसमें सभी लोगों को बहुत ही आनंद के साथ इस उत्सव में और ट्रस्ट के लोगों को भी है। ट्रस्ट में कहीं न कहीं दृष्टिभेद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, सबना चाहिए। सबको करना आयोजक का दायित्व है, जो आयोजन करता है, आयोजनकर्ता का दायित्व है कि समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो वरेण्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, शंकराचार्य हो, तदाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, जितने भी हमारे हैं, जितने भी हमारे अखाड़े के परम पूज्य संत चरण हैं, इनको बड़े सादर आमंत्रण देना चाहिए और सादर उनको निवेदन करना चाहिए कि वो सब पधारे, क्योंकि शंकराचार्य नहीं सम्मिलित होंगे, धर्माचार्य नहीं सम्मिलित होंगे तो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य टिकेगा। धर्माचार्यों से ही धर्म की स्थापना होती है। जब उन धर्माचार्यों को विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा, विवादित बता दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये उचित नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। इससे संदेश गलत जाएगा और बाहर के देशों में हमारा अपमान होगा। इसमें हमारे सनातन धर्म की जो एकता, हमारी अखंडता है, जो हम सारे लोग अपना एक संदेश देना चाहते हैं, इसमें कहीं कहीं कुछ कमी हो रही है। इसमें जिनके तरफ से भी हो रही है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान भी इसमें विचार करें और ट्रस्ट के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इनको भी विचार करना चाहिए। और बसपा का नहीं, ये तो सच पूछो करोड़ों करोड़ों की आस्था का उत्सव है, भक्तों का उत्सव है, महात्माओं का उत्सव है, राम भक्तों का उत्सव। इसको पार्टी नहीं लेनी चाहिए और न तो कांग्रेस को इसको करना चाहिए और न तो भारतीय जनता पार्टी से पूरा अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि 2014 का ही आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन 492 आना है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने, कितने लोगों ने केवल की पार्टी का, किसी संगठन का ये राम मंदिर नहीं, ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहां से राम राज्य की संस्कृति की धरती है, ये संस्कार की धरती है, ये सनातन परंपरा की सबसे प्राचीन धरती है। यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की आध्यात्मिकता और यहाँ के संस्कार, यहाँ की शिक्षा पूरे विश्व को संदेश देते हैं। इसलिए अयोध्या का कार्यक्रम बहुत ही सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी जितने भी वरिष्ठ लोग हैं इनसे मैं निवेदन करता हूं, बैठिए, आपस में समझिए, इसका रास्ता निकालिए, क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पहली बात तो प्रतिष्ठा को कोई औचित्य नहीं है। प्रतिष्ठा जो प्रचारित किया जा रहा है ये झूठा है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भगवान रामलला अपने नव्य भवन विराजमान होने जा रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जिनके अंदर प्राण नहीं होता। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया विराजमान रामलला को, पक्ष में निर्णय लिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसी, उनका बना भवन वो कचरा समाप्त करके नया भवन निर्माण करके उनको विराजमान किया जा रहा है। नव्य भवन में विराज होने जा रहे हैं। प्राण का एक अलग महत्व है, उसकी एक आध्यात्मिकता है, उसकी एक है, उसकी एक होता है। कुल मिलाकर के इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब, हम अयोध्यावासी अयोध्या धाम की तरफ जाना चाहते हैं। सभी धर्माचार्य, सभी राजनीतिक दल के लोग और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अधिकारी पदाधिकारी समन्वय बना करके और ऐसा उत्सव बनाए जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाए और देश और विदेश में इसका संदेश अच्छा जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी,
ज्योतिनाथ जी, हम लोग बात करें अपने जिस हिसाब से माहौल बना रहा है, जैसे अपने दिलीप दास जी महाराज ने बताया, आपकी ओर से क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखो, बात ऐसी है, हम साथ में ही है। दिलीप दास जी के शब्द को समझने की बहुत जरूरत है। दिलीप दास जी जो शब्द बोल रहे हैं वो समझो। आज के समाज के अंदर जिस प्रकार से स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने जिस प्रकार से राम का और हनुमान का अपमान किया, सनातन को खंडित करने की हमेशा कोशिश की है, इन लोगों को निमंत्रण देते हो, इसका मतलब क्या? पहले वहीं से चालू होता है। सनातन का विरोध करने वालों को आप निमंत्रण क्यों देते हो? आप उनको दूर रखना चाहिए। जो रामलाला को ही मानने को तैयार नहीं है, घनश्याम पांडे को अपना बाप मानता है, उनको क्यों निमंत्रण दिया जाता है? और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने जो कुछ भी बोला उसको समझने की कोशिश करने की जरूरत है। जैसे इन्होंने बताया, दिलीप दास जी ने, कि इसको प्राणिकता न कहते हुए इसको जीर्णोद्धार कहा जाता है, इसको पुनर्जीवित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अलग है, इसको दूसरी तरफ से ले जाना चाहिए। मगर आप जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हो, धर्म के विपरीत बात, और धर्म के विपरीत जब बात होती है तो ये तो समाजी कार्य है, इनकी तो जवाबदारी है सच्चा बोलना। ये कोई मस्का मारने के लिए थोड़े बैठे हैं किसी को, और ये कोई पार्टी के पहले थोड़े है कि एक पार्टी की फेवर करेंगे, एक पार्टी की नहीं करेंगे। ये एक बात तौहीन की है, एक धर्म की तौहीन की होती है, तभी ये बोलना पड़ता है ना। अब पूरा सुनने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि समाज को इसके साथ में रहना चाहिए, ये राम मंदिर उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, सबको जाना चाहिए, मगर हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है। ये बात है, इसको समझो जरा। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अपने कांग्रेस के प्रवक्ता अपने साथ जुड़े सागर भाई शाह। सागर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस हिसाब से निमंत्रण दिया गया और पॉलिटिकल एजेंडा न बताते हुए इसको अपने भगवान हिंदू धर्म की छवि के हिसाब से देख के मान सम्मान जो मिलना चाहिए, उपस्थिति की जहां तक बात है, एक विरोध का सुर दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, और कुछ जो लोग हैं कांग्रेस के वो इस बात को मुनासिब भी मानते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट में। सागर भाई, देखिए नरेश भाई, मैं आपको 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जो है, उनकी जो राजनीति है, वो दाव तो बहुत अच्छा खेलने जाते हैं, लेकिन जब वो दाव खेलते हैं तब उनका दाव पूरा उल्टा उनके ऊपर ही पड़ जाता है। मैं राम मंदिर के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे 3 या 4 छोटे छोटे उदाहरण देने 30 सेकंड के अंदर, उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी ने नमस्ते ट्रंप किया था, नमस्ते ट्रंप हार गए। किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल्स वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। हिट एंड रन केस वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी के ऊपर केस करके संसद छीन ली थी, संसद में वो वापस आ गए, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उसके बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक थप्पड़ मारी और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। आज वो सारे भाग चुके हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं कांग्रेस को इनविटेशन दूं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, और जाहिर है कि कांग्रेस विरोध करेगी या अस्वीकार करेगी, तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा है ही नहीं। राहुल गांधी ने बोला है कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, तो आप क्यों इनविटेशन देने आए? अब ये दाव क्या उल्टा पड़ गया है? वो चाहते थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी साबित हो, लेकिन आज हुआ क्या है? हिंदू ही हिंदू का विरोधी हो गया है। देश के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य के विरोध में खड़े हैं मोदी जी। इस देश के अंदर पहले मुसलमान का विरोध किया गया, फिर दलितों का विरोध किया गया, फिर आदिवासी का विरोध किया गया, और आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्यों का अनादर, अपमान और अवगणना, हिंदू धर्म की अवगणना देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो रही है। वो चाहते थे कि कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी साबित हो जाए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का दाव, मैंने जैसे बताया कि इतने केसेस में उल्टे पड़ गया, वैसा ही नरेंद्र मोदी का दाव 22 जनवरी के लिए जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट बनाया गया है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है,
उसमें कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए जो दाव खेला गया, वो दाव आज मोदी जी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। और रही Okay. बात प्राण प्रतिष्ठा की, नहीं Okay. रही बात प्राण जी। प्रतिष्ठा की, मैं जी। 1 मिनट 1 सेकंड में पूरा करता हूं। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूरा बन जाए, शिखर बन जाए, जब गर्भ ही कच्चा हो तो अंदर बैठने वाले राम लल्ला, वो बच्चा, वो हमारे राम लल्ला, छोटे से प्यारे से राम लल्ला, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? इंसान के गर्भ में जब इंसान का गर्भ मजबूत होता है तब बच्चा सुरक्षित जन्म लेता है। जब तुम्हारा गर्भ ही कच्चा है तो गर्भ के अंदर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ये धर्म के विरुद्ध है और लॉजिकली भी बहुत विरोधी है। आज जी। देश के प्रधानमंत्री खुद हिंदू विरोधी साबित हो गए हैं। ओके शैलेश भाई, मेरे सवाल आपसे, बट उसके पहले अपने प्रतिक्रिया जानेंगे उनकी जो उत्तराखंड ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। टेक्निकल टीम से विनती करूंगा मैं कि उनकी प्रतिक्रिया सुनाए, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। शैलेश भाई, सवाल तो है क्योंकि शंकराचार्य खुद इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शैलेश भाई, क्या बताएंगे आप? मैं उनके जवाब में इतना ही बताऊंगा कि जो मंदिर हैं उनमें वो अभी तो 22 तारीख को सब कार्यक्रम है तो उससे पहले सब कुछ जो आपकी जो दुविधा है वो सब कुछ पूरी हो जाएगी। और राम मंदिर का जो गठन हुआ है 22 तारीख को राम लल्ला मंदिर में पधार रहे हैं तो उसका उत्साह करो। वो उसके लिए कोई ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो कोई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ये तकलीफ है, ये तकलीफ। हम सभी संतों को नमन के साथ, प्रणाम के साथ, उसके आत्मा के अंदर बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करके सबको विनती करते हैं कि सब आए और पधारे, राम लल्ला जो पधार रहे हैं वहां पे पधारे। मगर अभी सागर भाई बोल रहे थे कि ये हिंदू विरोधी है, ये ऐसा है, ऐसा है। भाई हिंदू विरोधी तो आप बोले हैं, आपने बोला, आपकी पार्टी के बुजुर्ग लोग जो है उन्होंने बोला है कि राम काल्पनिक है, उन्होंने बोला है कि राम सेतु का कुछ अस्तित्व नहीं है। तो ये पहले सोच लो, बाद में आप बात करना। पहले आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदू में मानते नहीं है। हम तो सभी धर्म में सभी धर्म में मानते भी है और उनको साथ लेके चलते हैं। सद्भावना मिशन भी आप बात को पूरी समझे नहीं अभी तक। शैलेश भाई, आपको मैं रोकना चाहूंगा। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा से है उनकी प्रतिक्रिया चलाए ताकि शैलेश। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्रार्थी है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या नहीं है? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूं कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूं कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जाता। निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। शैलेश भाई, आपने सुना होगा कि जिस हिसाब से शंकराचार्य जी और उनका निवेदन जो है वो बता रहा है कि ये पूरा धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनका विरोध है, न कि राम के खिलाफ है, ये अगेंस्ट नहीं है।
ये राम को पूजते हैं, ये राम को मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कार्यक्रम अभी जो आयोजित किया गया है उसके खिलाफ ये उनकी बात है। दिलीप दास जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस हिसाब से शंकराचार्य जी ने और बात रखी अभी मुक्तेश्वरानंद जी और स्वामी जो अपने थे निश्चलानंद जी सरस्वती, आप क्या कहेंगे उनके निवेदन को लेके? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी दिलीप दास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी जिस हिसाब से हमने सुना शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी दोनों को सुना हम लोगों ने, जिस हिसाब से उन्होंने विरोध किया वो राम के अगेंस्ट में नहीं है, धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, बट जिस हिसाब से पूरी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो आयोजित किया गया है उचित समय पर नहीं हो रहा है, इसमें जल्दबाजी हो रही है। ये बात तो सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग समझ भी रहे हैं इसको, सभी राजनीतिक दल के लोग भी समझ रहे हैं, सभी नेता लोग भी समझ रहे हैं जल्दबाजी हो रही क्यों हो रही है, क्यों की जा रही है। ये बात सही है। और ये बात मैं भी कहता हूं कि हमारे सार अधार्मिक नहीं है, राम विरोधी नहीं है। और जिस जी की बात कर रहे हैं, इनके परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने कितना संघर्ष किया राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। उन्होंने रामालय ट्रस्ट का निर्माण तक किया, उसमें चारों शंकराचार्य, सारे वैष्णव आचार्य, सारे अगमों को सम्मिलित किया कि धर्माचार्यों। और सही बात तो यह है मान्यवर कि मठ मंदिर का संचालन धर्माचार्यों के द्वारा होता है, संत महात्माओं के द्वारा होता है। किसी संगठन और किसी पार्टी द्वारा मठ मंदिर ना तो बनाए जाते हैं ना तो चलाए जाते हैं। मठ मंदिर में सहयोग करने का अधिकार राजनीतिक दलों का है, समाज के लोगों का है, समाज के संगठनों का है। ये अपना सहयोग प्रतीक दान करें, इसमें सुझाव दें और ये मालिक बन करके उसका संचालन करें। और ये धर्माचार्यों को आमंत्रित करें धर्म के आयोजनों में, ये बिल्कुल अनुचित हो रहा है। और इस बात को मैं प्रमाणित करता हूँ, हमारे जो भी हमारे जो आचार्य है वो न तो धर्म विरोधी हैं, न तो राम विरोधी, न तो राम मंदिर विरोधी हैं, के विरोधी हैं। अब तो कोई ऐसी आफत नहीं थी, अब तो कोई ऐसी विपत्ति नहीं थी, अब तो कोई ऐसा धर्म संकट नहीं था। क्षमानन थानन में राम जी को बिना निर्माण के अर्धनिर्मित मंदिर स्थापित कर दें, ये थोड़ा उन लोगों को लग रहा है। धर्माचार्य उनको लगना भी चाहिए, उनको इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का नैसर्गिक अधिकार है। वो धर्माचार्य हैं, जब कहीं अधार्मिक कार्य होगा, धर्म के विपरीत होगा, वेद के विपरीत कार्य होगा, तो शंकराचार्य इसीलिए उनको मनोनीत किया गया, इसीलिए उनको बैठाया गया है। वो इस पर बोलें, वो इस पर मार्गदर्शन करें। उनके मार्गदर्शन को हम लोगों को मानना चाहिए, ट्रस्ट के लोगों को मानना चाहिए, सभी लोगों को मानना चाहिए। आचार्यों के अखाड़ों के मार्गदर्शन, संतों के मार्ग धर्म का संचालन करेंगे ना भाई, धर्म की स्थापना करेंगे कि संतों का विरोध करके, संतों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके। इसलिए जहां कहीं त्रुटि हो, कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए आयोजकों को जाकर के शंकराचार्य से निवेदन करना चाहिए, और पहले भी करना चाहिए था। सबसे परामर्श करके आचार्यों से, जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से, अखाड़ों से परामर्श करके समय सुनिश्चित। यहाँ तो फरमान जारी, डेट सुनिश्चित, तारीख घोषित हो गई, फिर उसमें फिर विवाद का क्या मतलब है? या तो आप सबसे परामर्श करिए। जी दिलीप दास जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेके जल्दबाजी का निर्णय लग रहा है कि आप इस किस परिप्रेक्ष्य में लग नहीं रहा सा। ये 24 कैरेट यही सत्य है। ये सभी राजनीतिक दल विरोध करने वाले को भी 2024 दिख रहा है और इसका समर्थन करने वाले को भी 2024 दिख रहा है। और धर्म संकट में तो धर्माचार्य बेचारे पड़े हैं। कांग्रेस अपना विरोध का मजा लेगी, भाजपा अपना सहयोग का मजा लेगी और वो इसकी प्रतिक्रिया का मजा ले। राजनीतिक दल लोग तो ये सब 1984 से अपनी रोटी सेक रहे हैं। और अब तो हम लोग सोचे थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय राजनीतिक कड़ाही नहीं चढ़ाई जाएगी, अब राजनीतिक तावा नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन वारे राजनेता आप सभी को है कि भगवान के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत ही समन्वय के साथ रामलला को बैठाइए और मान कर बैठाइए, राम मंदिर नहीं आप बना रहे हैं और भगवान राम की वो परिकल्पना, रामराज की परिकल्पना साकार हो। सब रसपर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ये हमारे रामचरितमानस रामराज की कल्पना है। भगवान राम ने कहा था, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सबका। राजगद्दी पर जब भगवान राम विश्व के सबसे बड़े नायक का, लोक का ये संभाषण उन्होंने कहा, अयोध्या के प्रजाजनों, मुझसे कहीं गलती हो जाए, मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो जाए,
मानस में लिखा गया, जो अनित शुभा को भाई तो मोहि जो भय विसराई, ये रामचरितमानस में लिखा। लेकिन यहाँ अगर कोई आप नीति पर कोई बोल दे तो उसके ऊपर तो कानून का शिकंजा कर दिया जाएगा, उसके ऊपर सांच लग जाएगी, उसको आप राम विरोधी घोषित करने लगे, उसको आप धर्म विरोधी घोषित करने लगेंगे, उसको आप पाकिस्तानी घोषित करने लगेंगे, तालिबानी बताने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्माचार्यों की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है आज के समय में। धर्माचार्यों के, संत महात्माओं की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये वही धर्माचार्यों की बात सुनी जा रही तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ में लगे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि धर्म को आगे रख करके चलाए। जी ज्योतिनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस हिसाब से दिलीप दास जी महाराज बता रहे हैं बात को, आपके विचार क्या है इस बारे में? ज्योतिनाथ जी, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? आप सुन पा रहे हो मुझे? नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। शैलेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से दिलीप दास जी महाराज ने बात बताई कि एजेंडा ज्यादा दिख रहा है, धर्माचार्यों का जो उनका अनुमोदन होना चाहिए, उनसे परामर्श जो करना चाहिए, वो बिना किए गए जल्दबाजी में किया गया निर्णय। शैलेश भाई, पहले तो ये जो निर्णय है और जो काम ये रामलला ट्रस्ट जो है वो सभी को निमंत्रण देते हैं और विश्व हिंदू परिषद जो है वो उनमें उनको सहयोग कर रहा है। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई मानो कि ये वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी नहीं कर रहे हैं। ये पूरा काम जो ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद उनको वो साथ सहकार दे रहा है। मगर मैं ये कहना, जिस हिसाब से संत आलम में विरोध का सुर उठा है सत्ता के खिलाफ कि जल्दबाजी की जा रही है, जल्दबाजी क्यों की जा रही है वो पता नहीं चल रहा है उनको, या फिर सीधा ही बोल दिया उन्होंने कि इलेक्शन एजेंडा दिख रहा है। चाहे कांग्रेस हो, पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी लोग इलेक्शन एजेंडा को लेकर ही चल रहे हैं। शैलेश भाई क्या बताएंगे? हाँ, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी अभी शासक पक्ष है, तो शासक पक्ष के वजह से उनको जो अभी सभी को किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, वो तय करने का भी सभी जो दायित्व है वो विश्व हिंदू परिषद और रामलला ट्रस्ट। मगर मैं सवाल ये है कि जल्दबाजी में ये सब कुछ हो रहा है। जैसे दिलीप दास जी महाराज ने बताया कि ये इलेक्शन एजेंडा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि शिखरबद्ध जब तक मंदिर नहीं होता, जब तक शंकराचार्यों से परामर्श नहीं किया जाता, बिना परामर्श के आप इतनी बड़ी इवेंट लगा रखी है जो भारत के अंदर राममय बना दिया पूरे भारत को, लेकिन संतों को ही अपने साथ नहीं लिया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपका जो सवाल है उनका जवाब ही दे रहा हूँ कि सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो कोई संत कोई नाराज है या किसी को आमंत्रण नहीं मिला? अभी संत बोल रहे थे शंकराचार्य किया गया, शंकराचार्यों सभी शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया और साथ में प्रत्येक शंकराचार्य को एक व्यक्ति लाने की अनुमति है साथ में, लेकिन वो लोग विरोध में है, विरोध के सुर है उनके, क्योंकि ये जो प्रतिष्ठा हो रही है ये मतलब सही तरीके से नहीं हो रही। जिस हिसाब से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, जिस हिसाब से स्कंद पुराण के अंदर दिया गया है, स्कंद पुराण के अनुसार ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है वो नहीं हो रहा है। मैं यही जवाब दे रहा हूँ, कोई काम जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, कोई काम जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। और इलेक्शन लक्ष्य ये राम मंदिर का गठन नहीं है, इलेक्शन को अभी बहुत देर है। मगर हमने बोला था कि 370 बीजेपी और आरएसएस जो भी हो, चाहे राम मंदिर के अयोध्या का ट्रस्ट जो है, संतों से परामर्श करने के बिना परामर्श किए जल्दबाजी में ये प्रोग्राम क्यों आयोजित किया गया? भरत भाई, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ये अभी जो आपने अगर सुनी हो पूरी चर्चा कि जिस हिसाब से अयोध्या से जुड़ चुके हमारे दिलीप दास जी महाराज जो रघुवंशी समाज के अध्यक्ष है, ज्योतिरादिनाथ जी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा भरत भाई कि जिस हिसाब से आयोजन किया गया समग्र, लेकिन शंकराचार्य पूरे जो है चारों अगेंस्ट में प्राण प्रतिष्ठा के, आपका सुझाव क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें जरा आपको मोबाइल में।
उस लड़के को फोन लगाओ, जी बाहर हो जाए। ज्योतिनाथ जी, जब तक मेरा प्रश्न आपसे है कि जिस हिसाब से दिलीप दास जी महाराज ने बताया कि ये जल्दबाजी में हो रहा है, स्कंद पुराण के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार, तो आप बता सकते हो कि किस हिसाब से होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समग्र? ज्योतिनाथ जी, महाराज जी का कार्यक्रम है तो क्या ज्योतिनाथ जी कनेक्ट है अपने साथ? मैं टेक्निकल टीम से पूछूंगा, ज्योतिनाथ जी कनेक्ट है अपने साथ? नेटवर्क कनेक्टिविटी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी भरत भाई आपको? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल में अनम्यूट म्यूट अनम्यूट का देखिए बटन, आपको शायद अनम्यूट नहीं किया होगा आपने। जी, अभी 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 आया आवाज। नहीं, अभी वापस बंद हो गया। मैं ज्योतिनाथ आदित्य आपके पास आना चाहूंगा। जिस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपने चर्चा कर रहे हैं कि, और जैसे दिलीप दास जी ने बताया कि शास्त्रोक्त अनुसार जो कार्यक्रम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जैसे धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को से परामर्श करके जिस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए वो लेने में विफल रही सरकार, और चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राम ट्रस्ट हो, राम मंदिर ट्रस्ट। क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? आपका सुझाव क्या रहेगा? सोनी जी, हम लोग चुकादे आने के बाद में मिला थे 2019। तभी मैंने बताया था कि इनकी ज्योतिनाथ जी, आपके नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मैं दिलीप दास जी के पास आना चाहूंगा। दिलीप दास जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस हिसाब से अपने प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो बता रहे हैं कि ये कोई इलेक्शन एजेंडा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो दिया गया है, जैसे स्कंद पुराण में, आप तो ज्यादा ज्ञानी है इस विषय में, आप बताइए किस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए? हमको इसमें हमारे बताने का कोई मतलब नहीं ना, हमारी बात कोई सुनने नहीं जाएगी। नहीं, अपनी बात तो रख सकते हैं कि किस हिसाब से होना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि अनुसार किस हिसाब से होना चाहिए। अपनी बात, अपना पक्ष तो रख सकते हैं दिलीप दास जी। हम अपनी बात रखने का मतलब है हम सिस्टम विरोधी हैं। इसलिए रामचरित मानस में एक चौपाई है, जी। रामचरित मानस में है कि हम लोगों की मजबूरियां हैं। हम लोग क्या करेंगे जब शंकराचार्य सबसे बड़ा सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है शंकराचार्य का, चारों पीठों पर 4 शंकराचार्य स्थापित। जब उनके बात का कोई महत्व नहीं हो रहा है, उनके बात को राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत, हम संतों का क्या अस्तित्व है अपनी बात रखने का, अपनी विचार रखने का? हम लोग तो मना रहे हैं। अनुसार मेरा प्रश्न आपसे ये है कि किस हिसाब से, किस शास्त्र में नहीं बोल रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे अयोध्या का कोई आचार्य, हमारे अयोध्या का कोई विद्वान इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके घर में पूजा है वो कोई विद्वान सम्मिलित, हमारे अयोध्या में विद्वान परम पूज्य स्वामी जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर, जो भारत में मतलब चुनौती दे सकते हैं, उनसे कोई शास्त्र आप नहीं ले सकता। ऐसे परम विद्वानों का कोई मतलब नहीं हमारे अयोध्या में। हम जैसे छोटे मोटे शर्माओं का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब तो उत्सव मनाया जा रहा है, तारीख सुनिश्चित हो गई है, कार्यक्रम बन गया है, तैयार है, हम लोग इसमें उत्सव मनाएंगे। उत्सव तो जरूर मनाएंगे, लेकिन शास्त्र में इसका क्या, शास्त्र में महत्व क्या है और किस हिसाब से होना चाहिए, ये तो जानने की कोशिश करेंगे आम जनता। शास्त्र की बात बताएंगे, शास्त्र की बात जगत गुरु पंडित जी बताएंगे, शास्त्र की बात हो जो वाले हम समाज की बात करेंगे। हमारे यहाँ रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो भी होगा, हमारे का उत्सव हो रहा है, हम लोग उसमें करने जा रहे हैं। उसमें कोई भी होगा हम लोग आप तरफ से नहीं करेंगे। जो भी होगा, अगर मान लो निर्णय गलत होगा तो इसका राष्ट्र भोगेगा, हम लोग भी भोगेंगे। राष्ट्र को दंड मिलेगा तो हम लोगों को भी दंड मिलेगा।
अब तो जो कुछ भी होगा हम लोग उसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस अवसर की प्रतीक्षा 492 वर्ष हमारे पूर्वजों ने किया था, हम सभी लोग उसको मनाएंगे। अब सरकार का जो निर्णय है, ट्रस्ट का जो निर्णय है, भाई जो निर्णय वो अपने उत्सव जब मनाना चाहेंगे तो हम लोगों को उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। इसमें हम लोग समझा करके, बुझा करके, परामर्श दे करके इसका कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरा परामर्श मतलब वहां दिलीप दिया दास जी जाता ये है था जहां कि शास्त्र में क्या प्रावधान दिए गए जिस हिसाब से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा में तो ऐसा है कि जब सपत्नीक होना चाहिए, के साथ होना चाहिए। उसमें ये 5 दिन का उसमें उपवास किया जाता है। जलादिवास एक दिन भगवान जल में रखे जाते हैं, एक दिन फलादिवास एक दिन फल में रखे जाते हैं, एक दिन वस्त्रादिवास एक दिन वस्त्र में रखे जाते हैं, एक दिन अन्नादिवास एक दिन अन्न में रखे जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं। यानी भगवान की अष्टयाम सेवा में जो भी सामग्री रहती है, उनके भोग राग में जो लगता है, उनके सेवा श्रृंगार में जो भी सामग्री प्रस्तुत की जाती है, पहले उसका पूजन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये सब होता है। लेकिन हम अयोध्यावासी लोग तो हम यही मान रहे हैं, आगे प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जी भवन प्रवेश करने का उत्सव उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे लिए प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हमारे लिए हमारे रामलला का पुराना भवन तोड़कर कचरा साफ करके और नए मंदिर नए भवन का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा बना रहा, प्राण कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान जाने, अपने लोगों के इसमें कोई नहीं। जी, आप इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन इंडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिलीप दास जी। શૈલેષભાઈ, જે પ્રકારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ને જે પ્રકારે દિલીપ દાસજી મહારાજનું એક નિવેદન કે અયોધ્યામાં છે, રઘુવંશ સમાજના અધ્યક્ષ છે, છતાં સંત સમાજને પણ ઘણા એવા સંત સમાજ છે કે જેમને વિશ્વાસમાં લેવામાં નથી આવ્યા, જેમને આમંત્રણ આપવામાં નથી આવ્યું। શૈલેષભાઈ, જુઓ, સરકારમાં છીએ એટલે અમારી જવાબદારી પણ છે ને અમારી જવાબદારી સ્વીકારીએ છીએ, પરંતુ જે પ્રકારનું આમંત્રણ વાળી વાત છે એ કદાચ જે અયોધ્યા ટ્રસ્ટ છે અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ છે એમની સુધી અમે વાત પહોંચાડીશું। આમાં તમામ લોકોનો અધિકાર છે, તમામ લોકોએ આવવાની ફરજ પણ છે ને અમે તો આમંત્રણ કરીએ છીએ કે આવો। અને જે વાત હમણાં તમે પૂછી હતી કે ભાઈ ઉતાવળ કેમ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ઉતાવળ નથી, અત્યારે કોઈ ઉતાવળ ચૂંટણી મેં પણ નથી નથી, કહ્યું, ઉતાવળ દિલીપદાસજી મહારાજે કહ્યું કે દિલીપદાસજી ઉતાવળથી આ મહારાજ અને સમગ્ર આયોજન શંકરાચાર્યજીએ કરવામાં આવી પણ રહ્યું છે। ના, શંકરાચાર્યજી જોડાણા હતા, એમણે પણ કહ્યું, દિલીપદાસજીએ કહ્યું, પણ ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય થયો નથી। ઘણા ટાઈમથી આ વાત હતી ને અમે કહ્યું હતું, અમારા એજન્ડામાં રામ મંદિર હતું કે અમે રામ મંદિર બનાવીશું। આખરે કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો ને અમે રામ મંદિર બનાવવા માટે નિમિત્ત બન્યા છીએ। અમે કોઈ અહમની વાત નથી કરતા, મારે એ ન કહેવું જોઈએ। આપણી પ્રતિષ્ઠિત ચેનલ પરથી હું ન કહી ભરતભાઈ, મારો શકું, પ્રશ્ન પરંતુ આપને કે જે પ્રકારેનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો ગુજરાત પ્રદેશ લેવલે, આપ ગૃહસ્થ પરંપરાના સામાજિક આગેવાન છો, આપ સમગ્ર જે વાતાવરણ આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે રામમય બનેલું છે જોવા મળે છે, પરંતુ જે પ્રકારે વિરોધનો સૂર જોવા મળી રહ્યો છે ધર્માચાર્યોમાં, શું કહેશો આપ? જી, ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ છે, કદાચ આપ કનેક્ટ નથી થઈ શકતા, ના હોય તો આપણે ઇયરફોન કાઢી અને ડાયરેક્ટ મોબાઈલથી કનેક્ટ થશો તો આપનો કદાચ અવાજ અમારા સુધી આવી શકે। જી, સાગરભાઈ, મારો પ્રશ્ન આપને કે જે પ્રકારેની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જે પરામર્શ થવો જોઈતો હતો સંતો સાથે, જે શંકરાચાર્યો છે તેઓ પણ આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે ઇવેન્ટનો, કોઈ રાજકીય પક્ષાપક્ષી નથી, કોઈ રાજકારણની વાત નથી આવતી, પરંતુ ધર્માચાર્યો પોતે આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, શું કહેવું, શું માનવું આપનું? જુઓ, મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કે મોદીજી તો રાજકારણ રમવા જ ગયા હતા અને એમણે કોંગ્રેસને ઇન્વિટેશન આપ્યું, પરંતુ દાવ આખો ઊંધો પડી ગયો। 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં 1983માં રાજીવ ગાંધીએ આ રામ મંદિરના તાળા ખોલ્યા હતા। શૈલેષભાઈ કહે છે ને કે કોંગ્રેસ રામ વિરોધી છે, તો એનો પહેલા જવાબ આપી દઉં। 1985માં આ રાજીવ ગાંધીએ જ રામાનંદ સાગર સાથે વાત કરીને આખા ભારતમાં રામાયણનું પ્રસારણ દૂરદર્શન ઉપર કરાવ્યું, ત્યારે આ દેશની અંદર હિન્દુ અને મુસલમાનો સાથે બેસીને જોતા અને આખા દેશમાં કર્ફ્યુ લાગી જતું। અને જ્યારે આજે
નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે ને, ત્યારે રામના નામ ઉપર આખા દેશમાં બીજા બધા ધર્મોનો તો જવા દો, પોલિટિકલ પાર્ટીઓનો તો જવા દો, અંદર હિન્દુ ધર્મના લોકો જ લડી રહ્યા છે. આ કેટલી મોટી શરમજનક વાત 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ આપણા પહેલા વડાપ્રધાન એવા છે જેમના શાસનમાં બની ગઈ છે. એ પછી 1989 ની અંદર ઓલરેડી શિલાન્યાસ રાજીવ ગાંધીએ કોંગ્રેસના સમયમાં કરી દીધો છે. બીજી વખત શિલાન્યાસ એ ઇવેન્ટ હતી જે નરેન્દ્ર મોદીએ કરી, અને એની અંદર દેશના પહેલા નાગરિક રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને પણ આમંત્રણ નહોતું આપવામાં આવ્યું, સંસદના ઉદ્ઘાટનમાં પણ નહોતું આપવામાં આવ્યું. અને અત્યારે જ્યારે રામ મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે રામ મંદિર બન્યું નથી, ત્યારે આના ગર્ભગૃહમાં માત્ર 5 એવી વ્યક્તિઓને આમંત્રણ આપી છે જે બધા આરએસએસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે. એક પણ કોંગ્રેસનો વ્યક્તિ નથી કે વિપક્ષના કોઈ નેતા નથી. તો આ આખું રાજકારણ રામ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા જેનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, જેને અમે લોકો ઇવેન્ટ કહીએ છીએ, એ માત્ર ને માત્ર એક પોલિટિકલ પાર્ટીના હાથમાં છે. તમે જુઓ ગર્ભગૃહમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પૂજારીજી, પછી મોહન ભાગવત કયા આધાર ઉપર, જેમની સંસ્થા રજિસ્ટર્ડ નથી, જેને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે બેન કરી હતી, એના સર્વે સર્વા ગર્ભગૃહમાં કઈ રીતે આવી શકે? અને ઓકે, યોગી આદિત્યનાથ મુખ્યમંત્રી છે, આવી શકે. આનંદીબેન પટેલ કદાચ ગવર્નર છે એટલે આવી શકે. તો જો આનંદીબેન પટેલ આવી શકે ગર્ભગૃહમાં ગવર્નર તરીકે, તો દેશના પહેલા નાગરિક આદિવાસી મહિલા દ્રૌપદી મુર્મુને કેમ ક્યારેય કોઈ પ્રકરણમાં કે કોઈ ઉદ્ઘાટનમાં, કોઈ ફંક્શનમાં તમે ઇન્વિટેશન નથી આપતા? તો શૈલેષભાઈ, સાગરભાઈ આપને રોકેશ. છેલ્લો પ્રશ્ન શૈલેષભાઈ, મારો સમયની મર્યાદાને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. એક સેકન્ડ મને પૂરું કરવા દો કે આ આખી ઇવેન્ટ જ છે અને માત્ર ને માત્ર પોલિટિકલ ઇવેન્ટ છે, કારણ કે 10 વર્ષમાં કોઈ કામ નથી કર્યું, એટલે રામના નામે વોટ લેવા માટે આ બધું ભારતીય જનતા પાર્ટીને આરએસએસ ના હાથમાં છે. અને જ્યારે ધનખડશ્રીએ એમને કૃષ્ણના અવતાર કહ્યું, ચંપતરાય એમને વિષ્ણુના અવતાર કહ્યું, કંગના રણૌત જેવી અભિનેત્રી એમને અવતાર કહ્યું, ત્યારે આ વ્યક્તિ નાર્સિસ્ટ નેચર વાળા પ્રધાનમંત્રી પોતાની જાતને આ શંકરાચાર્યો કરતા પણ, હિન્દુ ધર્મ કરતા પણ મહાન માની બેઠા છે. અને આજે એ પોતે આ હિન્દુ રાષ્ટ્રનું, હિન્દુ ધર્મનું અપમાન કરી રહ્યા છે. શૈલેષભાઈ, છેલ્લો પ્રશ્ન મારો, સાગરભાઈ આપને રોકીશ. છેલ્લો પ્રશ્ન મારો આપને કે જે પ્રકારે નિયમ અનુસાર, જે પ્રકારે પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોની અંદર, વૈદિક શાસ્ત્ર, હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર જે પ્રકારે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, અને દિલીપદાસજી મહારાજે પણ એ જ વાત કરી, જ્યોતિનાથ આદિત્ય દ્વારા પણ એ જ વાત કરવામાં આવી, તમામ સંતો આ પ્રકારની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જે છે તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તો વિરોધ વચ્ચે શા માટે આ પ્રકારની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન? ક્યાંક સંકલનનો અભાવ માનવો કે કોઈ રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્યને આને સાથે સાંકળી લેવો કે શું કહેવું? શૈલેષભાઈ, સ્પષ્ટતા તમારી પાસેથી જનતા માંગશે. તો આ કાર્યક્રમ કોઈ રાજકીય નથી, આ ધર્મનો કાર્યક્રમ છે. રામલલ્લા અયોધ્યામાં પધારે છે, એનો આનંદ છે. જેમને દૂધમાંથી પૂડા કાઢવા હોય એ કાઢે. અમે રામલલ્લાને એના ગર્ભગૃહમાં સ્થાપિત કરીશું. અને આગામી દિવસોમાં ધર્માધિકારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે, શંકરાચાર્યો વિરોધ કરી રહ્યા છે, તદ ઉપરાંત પણ એ બધું રહેવાનું જ છે. એ માનો કે આવડો મોટો ઇવેન્ટ હોય તો કોઈને વાંધો હોય, પણ એ કોઈ પણ પ્રકારના વાંધા ન રહે. કોંગ્રેસને જે વાંધો છે એ ઉભો જ રાખે, કશો વાંધો નહીં, કારણ કે કોંગ્રેસ આપણે અત્યારે કોંગ્રેસની તો વાત જ નથી કરી રહ્યા. આપણે કોંગ્રેસની તો વાત જ નથી કરી રહ્યા. આપણે સાધુ સંત સમાજની વાત છે કે જે હિન્દુ સાધુ સંત સમાજને અમે નતમસ્તક નમન કરીએ છીએ. એમને નતમસ્તક નમન સાથે આમંત્રણ પણ આપીએ છીએ. સાધુ સંત સમાજને ક્યાંય તકલીફ હશે તે તકલીફનું નિવારણ કરીશું. અમે તો હિન્દુત્વના નામે જ આવીએ છીએ ને અમે હિન્દુત્વને સાથે રાખીએ છીએ. અમારા હૃદયમાં રામ વસે છે ને રામ માટે જ અમે કામ કર્યું છે. અમે 370 હટાવીશું તો હટાવી, અમે રામ મંદિર બનાવીશું તો બનાવ્યું. અમે જીર્ણોદ્ધાર કરીશું તો કર્યું. અમે જે બોલ્યા છીએ સમગ્ર મહેમાનો આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચામાં ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, જે પ્રકારે રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જે પ્રકારેનું મંદિર બનવું જોઈએ, જે પ્રકારેનું ગર્ભગૃહની વાત કરવામાં આવી, જે પ્રકારે દિલીપદાસજી મહારાજ દ્વારા વાત કરવામાં આવી, જે પ્રકારે જ્યોતિર આદિનાથ દ્વારા વાત કરવામાં આવી, ક્યાંક જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, જે 4 શંકરાચાર્ય છે ભારતના, આપણા દેશના, એ શંકરાચાર્યો પણ એની વિરુદ્ધમાં છે અને તેઓ પણ આ જે રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે તેમાં ઉપસ્થિતિ નથી આપવાના તેવું તેમના દ્વારા પણ એક નિવેદન આપી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ માહોલને કેવી રીતે જોવો તે લોકો ખેર જે પરિપ્રેક્ષ્યમાં લેતા હોય તે રીતે, પરંતુ 22 તારીખે જે રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે,
ચોક્કસથી લોકો એનો લાભ લેશે અને જે પ્રકારેનું એક વાતાવરણ બન્યું છે, ઉત્સાહનો અનેરો આનંદનો અવસર છે અને ચોક્કસથી આપણે રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને માણીશું પણ ખરા, પરંતુ વિવાદની સાથે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી આજની ચર્ચા. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો. નમસ્કાર.